کتنے اور کون کون سے مہینوں کا چاند دیکھنا ضروری ہے؟ 5 مہینوں کا چاند دیکھنا واجب کفایہ ہے۔ جی ہاں، آئیے وہ 5 مہینے کون سے ہیں میں عرض کرتا ہوں۔ بہار شریعت حصہ اول میں یہ لکھا ہے کہ شعبان المعظم، رمضان المبارک، شوال المکرم، ذوالقعدۃ الحرام اور ذوالحجۃ الحرام کا چاند دیکھنا واجب کفایہ ہے۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ شعبان کا اس لیے کہ اگر رمضان کا چاند دیکھتے وقت ابر یا غبار ہو تو یہ 30 پورے کر کے رمضان شروع کر دیا جائے۔ اچھا، رمضان کا چاند روزہ رکھنے کے لیے، اور شوال کا روزہ ختم کرنے کے لیے، اور ذوالقعدہ کا ذوالحجہ کے لیے، کیونکہ وہ حج کا خاص مہینہ ہے، اور ذوالحجہ کا چاند بقرہ عید کے لیے۔ یہ 5 مہینوں کا چاند دیکھنا واجب کفایہ ہے۔ درود پاک کی فضیلتوں پر غور کریں نا تو کون سا پرابلم ہے جس کا سولوشن درود پاک؟ روزی میں برکت چاہیے، ٹینشن دور کرنا ہے، بیماری دور کرنی ہے، عزت میں اضافہ کرنا ہے، رسوائی سے بچنا ہے، اچھی موت چاہیے، نبی پاک کا موت کے وقت دیدار چاہیے، پیارے آقا کے ساتھ قیامت کے دن کھڑے ہونا ہے، آقا کے ہاتھوں جام کوثر پینا ہے، نبی پاک کے ساتھ جنت جانا ہے، بار بار مدینے جانا ہے اور آقا کی زیارت کرنی ہے۔ یہ ساری چیزیں آپ حدیثیں پڑھیں تو تقریباً یہ سارے انعام حدیثوں اور روایتوں میں موجود ہیں۔ اور چاہیے کیا مجھے بتا دیں ایک مسلمان کو، اور کچھ رہ گیا ہے؟ اگر آپ کو یہ سب مل جائے زندگی میں، موت کے وقت مل جائے، حشر میں مل جائے، تو واٹ ایور ایلس وی نیڈ سب تو مل گیا۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ درود پاک کی طرف وہ رغبت ہم شاید نہیں کر پاتے، ہم اس کو پنکچوئلٹی سے نہیں پڑھ پاتے۔ اب آج کل بہت بڑا پرابلم مہنگائی کا ہے، لوگ قرضے میں ہیں۔ ایک بڑا خوبصورت حدیث پاک اور اس کے تحت ایک مختصر سا واقعہ عرض کر دیتا ہوں۔ نبی پاک علیہ السلام کا فرمان ہے جس کا مضمون ہے کہ جو شخص مصیبتوں اور پریشانیوں میں ہو، بہت سارے لوگ اس وقت طرح طرح کی مصیبتوں میں ہوں، ذرا غور سے سنیے گا۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جو شخص مصیبتوں اور پریشانیوں میں ہو اس کو چاہیے کہ مجھ پر کثرت سے درود پڑھے، کہ جو کثرت سے درود پاک پڑھتا ہے درود پاک مصیبتوں اور پریشانیوں کو لے جاتا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، ما من ایام العمل الصالح فیہا احب الی اللہ من ہذہ الایام، کوئی دن نہیں ہے کہ جس کا نیک عمل کرنا اللہ کے ہاں ان 10 ایام سے بڑھ کر محبوب ہو۔ یعنی عام دنوں میں نیکی کی جائے وہ بھی اللہ کو بڑی پیاری ہے، لیکن عام دنوں کی نسبت ذوالحجہ یعنی عشرہ ذوالحجہ جو ہے، ذوالحجہ کے جو پہلے 10 دن ہیں، اس کی نیکیاں اللہ کے ہاں بڑی محبوب ہیں۔ اور آگے ایک روایت میں ہے وَالْعَمَلُ فِيهِنَّ يُضَاعَفُ 700 ضِعْفٍ، ان دنوں میں نیکی کا ثواب 700 گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ تو سبحان اللہ، ان 10 دنوں میں خوب نیکیاں کیجئے، ہو سکے تو 9 دن روزے رکھیے۔ 10 ذوالحجہ کو عید والے دن روزہ نہیں رکھ سکتے کہ بلکہ 10، 11، 12، 13 یہ 4 دن، اور پھر عید الفطر 5 دن پورے سال میں روزہ رکھنا جائز نہیں۔ اور سبحان اللہ، علماء کہتے ہیں یہ جو 4 دن ہے نا بقرہ عید کے، یہ روزہ نہ رکھو، یہ اللہ کی طرف سے تمہاری دعوت ہے۔ ذوالحجہ کا مہینہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کتنا مقبول ہے، اور اس کا خاص طور پہ جو عشرہ ہے، پہلا عشرہ 1 ذوالحجہ سے 10 ذوالحجہ، اس میں کتنی برکتیں ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اللہ عز و جل کو عشرہ ذوالحجہ سے زیادہ کسی دن میں اپنی عبادت کیا جانا پسندیدہ نہیں۔ اس کے ہر دن کا روزہ 1 سال کے روزوں اور ہر شب کا قیام شب قدر کے برابر ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر مبارک ایام آ رہے ہیں۔ سلطان مدینہ قرار قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان با کرینہ ہے، مجھے اللہ عز و جل پر گمان ہے کہ عرفہ یعنی 9 ذوالحجۃ الحرام کا روزہ 1 سال قبل اور 1 سال بعد کے گناہ مٹا دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یوم عرفہ کا روزہ ضرور رکھنا ہے۔ ہاں، مگر جو حج پر جا رہے ہیں، حج کرنے جا رہے ہیں، حاجی پر یوم عرفہ کا روزہ رکھنا مکروہ ہے۔ باقی ساری دنیا کے مسلمان ضرور یوم عرفہ کا روزہ رکھیں۔ آج انشاءاللہ عز و جل مختصر وقت میں ہم کوشش کریں گے کہ آپ کو حج کے 5 دنوں کا آسان طریقہ بتا دیں۔ سب سے پہلے آپ نے گھبرانا نہیں ہے۔ دیکھیے نا، اگر میں اور آپ کسی کے مہمان بنتے ہیں تو میزبان انتظام کرتا ہے نا، مہمان کو فکر نہیں ہوتی۔ حاجیوں کو تو ضیوف الرحمان کہا گیا، حاجیوں کو اللہ کا مہمان کہا گیا۔ جب ہم اللہ کے مہمان ہیں تو گھبرانا کیسا۔ حج کے 5 دن کون کون سے ہیں؟ 8 ذوالحجہ، 9 ذوالحجہ، 10 ذوالحجہ، 11 اور 12 ذوالحجہ، یہ 5 دن ہیں۔ 8 ذوالحجہ ہم نے مینا میں گزارنا ہے۔ 7 ذوالحجہ کی رات سے ہی بعض اوقات
मुअल्लिम की बसें हमें मिना ले जाएंगी, अगर 7 की रात को ले जाएं तो चले जाइएगा, मगर एहराम पहनकर हज की नीयत करके अगर आप हज तमत्तो कर रहे हैं तो आपने मिना को रवाना हो जाना है। 8 जुल्हिज्जा का दिन बड़ा मुबारक दिन है। मिना की ये वो वादी है जहां नबी पाक अलैहिस्सलाम ने ये मुबारक दिन गुजारा, हमारे सहाबा ने ये दिन गुजारा है। खूब लब्बैक पढ़ते हुए दिन गुजारिएगा। यहां आपने और मैंने 5 नमाजें पढ़नी है। 8 जुल्हिज्जा को ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा और 9 जुल्हिज्जा की फजर। मिना में ये 5 नमाजें पढ़ना सुन्नत है। बाज़ औक़ात 8 जुल्हिज्जा की रात को ही, इशा के बाद ही मुअल्लिम के लोग ये ऐलान करते हैं कि बसों में बैठिए और अरफात चलना है। आप गुजारिश कीजिए, रिक्वेस्ट कीजिए, यहां भी झगड़ा नहीं करना, रिक्वेस्ट कीजिए कि हुजूर अगर 9 जुल्हिज्जा की फजर तक हमें मिना में रहने दें तो सुन्नत अदा हो जाएगी, लेकिन अगर इंतजामात ना हो और रात ही को ट्रांसफर कर दिया जाए तो अरफात चले जाइएगा। अब 8 जुल्हिज्जा का दिन जो मिना में गुजारना है उसमें करना क्या है? नमाजें पढ़िए, तिलावत कुरान कीजिए, जिक्र अस्कार कीजिए, लब्बैक पढ़िए। याद रखिए मिना में खवातीन भी होती हैं, कहीं बदनिगाही ना हो जाए। मोबाइल, सेल्फी और वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए वहां नहीं गए। इबादत कीजिए, अपने साथ तस्वीर रखिए, रो रो कर दुआएं कीजिए और याद रखिए 8 और 9 जुल्हिज्जा के दरमियान जो रात है ये बड़ी मुबारक रात है। अरफात जाने से पहले ये शबे अरफा है, ये हाजियों के लिए बड़ी मकबूल रात है। हो सके तो रोते रोते दुआएं करते हुए ये रात गुजारिए। अब 9 की सुबह अरफात जाना है, चाहे 8 की रात चले जाएं या 9 की सुबह चले जाएं, मगर याद रखिए हज का सबसे बड़ा दिन, हज का रुकने आजम वो अरफात का वकूफ है और ये हज का बड़ा फर्ज है। अब जो अरफात के वकूफ का वक्त है, जैसे ही ज़ोहर का वक्त शुरू होगा अरफात के वकूफ का वक्त भी शुरू हो जाएगा। अब ज़ोहर का वक्त शुरू हो जाए, आप अरफात में मौजूद हैं, एहराम की हालत में हैं, आपको मुबारक हो, आप हाजी हो गए, आपका हज हो गया। अब मजीद हज की चीजें बाकी हैं, लेकिन रुकने आजम आपका पूरा हो गया। लेकिन एक और बात याद रखनी है, गुरूब आफ्ताब से पहले आपने अरफात को नहीं छोड़ना। याद रहे आज वो दिन है जिस दिन मगफिरत का वादा है। हाजी से ऐसा वादा है कि हाजी गुनाहों से ऐसा पाक हो जाएगा जैसा कि मां के पेट से उसी दिन पैदा हुआ। अब ज़ोहर पढ़िए, असर पढ़िए, लब्बैक पढ़ते रहिए, दुआएं कीजिए। अरफात में फजूल कामों में वक्त ना गुजारिए, ये दिन नसीब वालों को मिलता है। जरा सोचिए नाजरीन, दुनिया में 150 करोड़ के करीब मुसलमान रहते हैं, उनमें से मुझे और आपको चुना गया है। उस दिन हाजी तो शुक्रगुजार बने कि मालिक तेरी मेहरबानी। अगर पाकिस्तान से आप गए हैं तो सोचिए 20 करोड़ से ज्यादा लोग हैं, उनमें से आपको चुना गया है। अल्लाह ने आपको ये मौका दिया है। रोते हुए, गिड़गिड़ाते हुए, इल्तिजाएं करते हुए ये दिन गुजारिए। जैसे ही गुरूब आफ्ताब का यकीन हो जाए, मगरिब का वक्त कंफर्म हो जाए, अब मुजदलिफा को जाना है, उससे पहले नहीं जाना। अब मुजदलिफा पहुंचकर इशा के वक्त में मगरिब और इशा अदा करनी है। ये रात इबादत में गुजारिए, थक गए हैं तो सो जाइए, फिर तहज्जुद के लिए उठिए। याद रहे उलमा कहते हैं मुजदलिफा की रात हाजी के लिए शबे कदर से अफजल रात है। मगर एक और अहम बात याद रखनी है कि जो मुजदलिफा का वाजिब वकूफ है, जो मुजदलिफा में लाजमी वक्त गुजारना है, वो फजर का वक्त शुरू होने के बाद है। तो यकीन कीजिए जैसे ही फजर का वक्त शुरू हो गया आपका वकूफ पूरा हो गया। एक लम्हा भी कोई वक्त गुजार लेगा फजर का वक्त शुरू होने के बाद तो मुजदलिफा का वकूफ उसका पूरा हो जाएगा। मगर अब फजर भी मुजदलिफा में पढ़िए और खास दुआएं कीजिए। याद रहे मुजदलिफा का जो वकूफ है उसमें हाजी से हुकूकुल इबाद मुआफ करने का वादा है। सुभान अल्लाह। तो अब जरा सोचिए, मुजदलिफा में आपने ये दुआएं कर ली, अब आपने कंकरियां चुननी है। आपने कितनी कंकरियां मारनी है? 3 दिनों में आपने 49 कंकरियां मारनी है। एहतियातन 63 कंकरियां ले लीजिए और कंकरियों की जो साइज होगी वो खजूर की गुठली के बराबर हो। अब आपने 10 जुल्हिज्जा की सुबह मिना की तरफ आना है। पाकिस्तान में तो ईद का दिन है, मगर हाजी ईदों की भी ईद बना रहा है। 10 जुल्हिज्जा की सुबह आपने क्या करना है? सबसे पहला काम आपने रमी करनी है, शैतान को कंकरी मारनी है। दूसरा काम आपने कुर्बानी करनी है और उसके बाद आपने हलक करवाकर, जो इस्लामी भाई हैं, जो मर्द हैं, उन्होंने हलक करवाकर एहराम उतारना है। जो खवातीन है उन्होंने बाल के आखिरी
चुटिया का जो पोरा है, पूरी चुटिया को घुमा ले अपने हाथ पे, अब इस एक पोरे को काट लेंगे तो आप एहराम से बाहर आ जाएंगे। अब एहराम की तकरीबन सारी पाबंदियां खत्म हो चुकी हैं सिवाय मर्द और औरत के मामलात के। अब आप खुशबू भी लगा सकते हैं, आप गुस्ल भी कर सकते हैं, कपड़े भी पहन सकते हैं। तो बाज हाजी ये टेंशन लेते हैं कि 5 दिन एहराम पहनना पड़ेगा। नहीं जनाब, आपने 2-2.5 दिन में एहराम उतार दिया है। 8 की सुबह अगर एहराम पहना था तो 10 की दोपहर तक, सुबह तक तो एहराम आप फारिग हो गए। अच्छा, अब 10 जुल्हिज्जा को जो पहला काम रमी करना है, बड़े शैतान को 7 कंकरियां मारनी है। कंकरियां मारने के बाद कुर्बानी करवानी है। कुर्बानी कर होने का यकीन हो जाए तो आप हलक करवाइए, एहराम से आप फारिग हो गए। अब हज का दूसरा फर्ज आपने अदा करना है, वो है तवाफुज ज़ियारा। 10 जुल्हिज्जा को बहुत रश होता है, ना कर सकें तो 11 जुल्हिज्जा को भी कर सकते हैं। 12 की गुरूब आफ्ताब से पहले पहले आपके पास वक्त है, आप तवाफुज ज़ियारा कर लें। जैसे ही तवाफुज ज़ियारा से फारिग होंगे, अब जो एक पाबंदी बाकी थी वो भी खत्म हो गई। अब आपने 10 की और 11 की दरमियानी रात बिना में गुजारनी है। ये 11वीं शब कहलाती है और ये सुन्नत है बिना में गुजारना। 12 की रात भी बिना में गुजारनी है, ये भी सुन्नत है। और अब आपने 11 और 12 को करना क्या है? 11 और 12 को सिर्फ आपका एक काम बाकी है, दोनों दिन आपने रमी करनी है और ये तीनों शैतानों को 7 कंकरियां मारनी है। अब इससे भी आप फारिग हो गए तो आप सुकून से मक्के आ जाइए और जब वतन वापस जाने का इरादा हो तो तवाफ़े रुखसत कर लीजिए। तो प्यारे हाजियों, ये 5 दिन घबराने के नहीं हैं, ये 5 दिन टेंशन के नहीं हैं। ये 5 दिन अल्लाह ने चाहा बहुत पुरसुकून और बड़ी इबादत में बैठे और आपने गुजारने हैं। याद रहे, शैतान ये चाहेगा कि इन 5 दिनों में भी हम मुसलमानों से उलझ पड़ें, माद अल्लाह गीबत हो जाए, बदनिगाही हो जाए, फजूल बातें हो जाएं और हम इबादत से महरूम रह जाएं। हमने शैतान के वार में नहीं आना, ये 5 दिन इबादत में गुजारने हैं, बल्कि इस नीयत से जाइए कि दूसरे मुसलमानों की मदद करूंगा। अगर किसी हाजी को रास्ता मालूम करना हुआ तो रास्ता बताऊंगा, कोई भूखा हुआ तो खाना खिलाऊंगा, कोई परेशान हुआ तो उसकी परेशानी दूर करूंगा। अल्लाह करे मैं और आप ऐसा हज करने में कामयाब हो जाएं कि पूरे सफर में मेरी वजह से किसी को तकलीफ ना पहुंचे, किसी की तकलीफ मुझे पहुंची तो इंशाअल्लाह मैं सब्र करूंगा। अलैहिस्सलाम को सरकार कहा जाता है। तो ये क्यों कहा जाता है? देखिए, एक बात याद रखें, अदब के जितने अल्फाज हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अल्लाह के हबीब हैं, अल्लाह के हबीब हैं। और उनकी बारगाह में सच्ची बात तो यह है कि हम उनकी शान बयान करें, हमारी औकात भी नहीं है, ना हमारे पास अल्फाज हैं। जितने अदब के अल्फाज हैं वो इस्तेमाल किए जाएं तो जिस लुगत में, जिस जबान में जो मोस्ट रिस्पेक्टेबल प्यारा लफ्ज हो, शान वाला लफ्ज हो, वो नबी पाक की शान में बयान किया जाता है। अरबी में मेरे आका अलैहिस्सलाम को सिराजुल मुनीर कहा रब ने, मुद्दस्सिर कहा, मेरे रब अज़्ज़ व जल ने मुज़म्मिल कहा। किस तरह प्यारे आका अलैहिस्सलाम का तज़किरा खैर कुरान में हुआ, इसी तरह अहादीस में सहाबा इकराम अलैहिम रिज़वान का अंदाज क्या होता था। प्यारे आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर होते, बल्कि मैं मशवरा भी दूंगा, जब मदीना पाक जाए ना तो एक बार सहाबा की सुन्नत को अदा करके देखना, दिल खुश हो जाएगा। सहाबा प्यारे आका के दरबार में जाते ना तो अर्ज करते, फिदा का उम्मी व अबी या रसूल अल्लाह, हमारे माँ बाप आप पर कुर्बान या रसूल अल्लाह। क्या मोहब्बत का अंदाज है। तो बहरहाल किसी भी लुगत में कोई बेअदबी ना हो तो वो लफ्ज इस्तेमाल किया जा सकता है। हमने तो कभी नहीं कहा कि प्यारे आका अलैहिस्सलाम को सरकार कहना लाजमी है। आप कोई और अदब का लफ्ज इस्तेमाल कर लें, आका कह लें, सरवर कह लें, मेरे आका नबियों के सरदार हैं, जो प्यारा लफ्ज आपको लगे। जो आपका कसीदा है, जो दुरूद ताज है, कितने प्यारे प्यारे अलकाब है, मिसबाहुल मुकर्रबीन, मुहिब्बुल फुकराई वल गुरबाई वल मसाकीन, तो बहुत प्यारे प्यारे अलकाब।